والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ شکاری پور میں پری پرائمری اساتذہ کا ایک روزہ تربیتی اجلاس کا انعقاد۔ شہادہ ضلع نندوبار میں جمعیت علماء کا ووٹ بیداری مہم پروگرام۔ مالیگاؤں 2008 معاملات 10 سال گزر جانے کے بعد بھی متاثرین انصاف کے انتظار میں۔ مدھیہ پردیش کیا کمل ناتھ کی کانگریس شیوراج کو حکومت سے بے دخل کرنے کی حالت میں ہے؟ این پی اے پر رگھورام راجن کی لسٹ اور رافیل پر مودی کو کئی سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ مدھیہ پردیش گورنر کی لڑکیوں کو صلاح مت کٹواؤ بال اور بنانا سیکھو دال۔ سرجیکل اسٹرائیک کے 2 سال مکمل ہونے پر راجناتھ سنگھ نے سرحد پار ایکشن کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کچھ بڑا ہوا ہے۔ بریلی آبروریزی میں ناکام ہونے پر دیور نے بیوہ بھابھی کا قتل کر دیا۔ پاکستان کے خلاف جلد کریں گے جوابی کارروائی، بی ایس ایف جنرل ڈائریکٹر کا انتباہ۔ محمود عباس فلسطینی قوم کی نمائندگی نہیں کرتے، 60 تنظیموں کا مکتوب۔ برلن اردوغان میرکل ملاقات میں تعلقات بہتر بنانے پر اتفاق۔ 1500 یہودی آباد کاروں کا حضرت یوسف کے مزار پر دھاوا۔ جاپان میں ٹرانسپورٹ انقلاب اڑنے والی خودکار کاروں کے روٹ کے نقشے تیار۔ فرانس جنسی ہراسانی اور تشدد کے قانون کا نفاذ، ملزمان کو قید و جرمانے۔ سعودی عرب کی سیادت سرخ لکیر ہے، اپنے امور میں مداخلت قبول نہیں، عادل الجبیر کا بیان۔ الزباب سعودی عرب کا شہر جس نے مورخین کو بھی حیران کر دیا۔ اسرائیلی فوج کی فائرنگ میں 2 بچوں سمیت 6 فلسطینی شہید اور 210 افراد زخمی۔ انڈونیشیا زلزلے سے ہلاک شدگان کی تعداد 384 ہو گئی۔ بنگلہ دیش میں فرقہ پرست رہنماؤں کو امیدوار نہ بنانے کی اپیل۔ عالمی برادری کی طرف سے وونروا کے لیے $118 ملین کا وعدہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں۔ پہلی خبر ممبئی سے ہے۔ ووٹر لسٹ میں ناموں کی اندراج کرانے کی مہم کو کامیاب بنانے اور عوامی بیداری پیدا کرنے کے لیے آج یہاں جمعیت علماء کی جانب سے مسجد مصباح تعلقہ شہادہ ضلع نندوبار میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی، مولانا زکریا رحمانی صدر جمعیت علماء ضلع نندوبار، جناب عبدالاحد بھائی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ضلع دھولیا اور علاقے کے علماء اکرام اور ذمہ داروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر پروگرام کے مہمان خصوصی مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی نے ووٹ اندراج مہم کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جن جن علاقوں میں سینٹر لگائے گئے ہیں اور ووٹر آئی ڈی بنانے، نام پتہ درست کرانے کا کام چل رہا ہے، ان سینٹروں تک پہنچانے کے لیے لوگوں کی رہبری و رہنمائی کریں، گھر گھر پہنچ کر لوگوں سے معلوم کریں کہ گھر میں کتنے فرد ہیں، کتنوں کے نام ووٹر لسٹ میں اندراج ہوئے ہیں، کتنوں کے باقی ہیں، کتنوں کے نام پتہ درست ہے، ان سب کی فہرست تیار کر کے ان سب کے نام اندراج کروانے کی کوشش کریں۔ ایک اور خبر ممبئی سے۔ آج ہی کے دن 10 سال قبل بھگوا ملزمین کرنل پروہت، سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر، میجر رمیشن اپادھیائے و دیگر ملزمین نے گنجان مسلم آبادی والے صنعتی شہر مالیگاؤں میں بم دھماکہ کیا تھا، جسے آج 10 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے اور اب تک اس معاملے میں باقاعدہ مقدمے کی سماعت شروع نہیں ہو سکی ہے، جس کی وجہ سے متاثرین اور انصاف پسند طبقہ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں۔ بم دھماکہ متاثرین کو قانونی امداد فراہم کرنے والی تنظیم جمعیت علماء مہاراشٹر قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ گلزار اعظمی کی نگرانی میں کام کرنے والی وکلاء کی ٹیم کے رکن شاہد و ندیم نے کہا کہ مرکز اور ریاست میں اقتدار کی تبدیلی کے بعد سے ہی مالیگاؤں 2008 بم دھماکہ معاملے کے ملزمین کو راحتیں حاصل ہونا شروع ہو گئی تھی، جو اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ ایک منصوبہ بند ایجنڈے کے تحت دھماکے معاملے کی تفتیش NIA سے کرائی گئی تاکہ بھگوا ملزمین کو راحت حاصل ہو سکے۔ ایڈوکیٹ شاہد ندیم نے کہا کہ حالانکہ عدالت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ملزمین پر سے مکوکا کا قانون ہٹا دیا ہے، لیکن اطمینان بخش ہے کہ ملزمین پر UAPA قانون کے تحت مقدمہ چلا جائے گا، جو مکوکا قانون سے کسی بھی طرح سے کم نہیں ہے، بشرطے کہ استغاثہ ایمانداری سے اپنی ذمہ داری نبھائے اور سرکاری گواہان کو تحفظ فراہم کر کے عدالت میں ان کی گواہی کو ان کے ذریعے دیے گئے بیانات کے مطابق درج کرانے میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن اب بھگوا ملزمین نے ایک نیا ہتھ کنڈا اپناتے ہوئے سپریم کورٹ سے پھر رجوع کیا تھا کہ ان پر UAPA قانون کا اطلاق بھی نہیں ہوا تھا، جس کے جواب میں سپریم کورٹ نے انہیں یہ معاملہ نچلے عدالت میں اٹھانے کا مشورہ دیا، جس کے بعد سے ملزمین UAPA کی اطلاق کو چیلنج کرتے ہوئے نچلی عدالت میں بحث کر رہے ہیں۔
अब खबर कर्नाटक के शिकारीपुर से। आज बरोज सनीचर गुलशन जुबैदा शिकारीपुर में एक रोजा प्री प्राइमरी असातिज़ा का तरबियती इजलास का इनेकाद किया गया था। इस जलसे की सदारत के फराइज हाफिज कर्नाटकी ने अदा किए, जबकि इस जलसे का इफ्तिताह रियासती कर्नाटक के मशहूर मारूफ नादगो शायर और कर्नाटक उर्दू अकेडमी के चेयरमैन जनाब मुबीन मुनव्वर साहब ने किया। इस मौके से मुबीन मुनव्वर साहब ने सदर कर्नाटक उर्दू अकेडमी ने हाफिज कर्नाटकी की ताज़ा तरीन नातिया मजमूआ आईना जमाल का भी इजरा किया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनाब मोहम्मद ज़ियाउल्लाह साहब सदर फेडरेशन ऑफ कर्नाटका मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दूसरे मेहमानान गिरामी में मशहूर शायर व अदीब जनाब शमीम राज साहब और फेडरेशन ऑफ कर्नाटका मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के नायब सदर अब्दुल समीउल्लाह और सेक्रेटरी मुजीबुल्लाह शरीफ शरीक मजलिस थे। इस प्रोग्राम का इनेकाद फेडरेशन ऑफ कर्नाटका मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन और कर्नाटका उर्दू चिल्ड्रंस अकेडमी ने मुश्तरका तौर पर प्रोग्राम का आगाज हस्ब रिवायत क़िराअत और हम्द नाज से किया। जनाब मुबीन मुनव्वर साहब सदर कर्नाटक उर्दू अकेडमी का कर्नाटका उर्दू चिल्ड्रंस अकेडमी की तरफ से एजाज किया गया और उनकी खिदमत में शाल, मोमेंटो, हार और एतराफिया पेश किया गया। इस एतराफिया को इस जलसे में पढ़कर भी सुनाया गया। सदर जलसा डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी ने उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ और अदब अतफ़ाल की तरक्की पर जोर देते हुए कहा कि प्री प्राइमरी सतह पर बच्चों को उर्दू की तालीम अदब अतफ़ाल की चाशनी और मासूमियत के साथ ही दी जा सकती है। इस तरह बच्चे अपनी ज़बान की मिठास से वाकिफ़ हो जाएंगे और वो किसी भी किस्म की उकताहट का शिकार हुए बगैर तालीम में दिलचस्पी लेने के काबिल बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि उर्दू ज़बान को बचाने के लिए और उर्दू स्कूलों के वक़ार को कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि प्री प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा बच्चों की नफ्सियात से अच्छी तरह वाकिफ़ हों। जनाब मुबीन मुनव्वर साहब ने अपने इफ्तिताई खिताब में कहा कि इस तरह की तरबियती जलसे की बेशक कीमत ज़रूरत है। अगर हम लोग इस तरह मिल बैठ कर ज़बान और अदब के फ़रोग़ के बारे में गौर करेंगे और असातिज़ा को नई नई तालीमी और तरबियती राहों से आगाह करेंगे तो यकीनन इससे उर्दू का मुस्तकबिल रोशन होगा। जनाब मुबीन मुनव्वर सदर कर्नाटक ने ऐलान किया है कि इंशाअल्लाह इमसाल कर्नाटक उर्दू अकेडमी की तरफ से शिकारीपुर जिला शिमोगा कर्नाटक में बच्चों के अदब पर एक कौमी सेमिनार मुनाकिद किया जाएगा, जिसमें मुल्क भर के अदब अतफ़ाल पर तहकीकी, तनकीदी और तख्लीकी काम करने वालों को बुलाया जाएगा। जनाब मोहम्मद ज़ियाउल्लाह साहब सदर फेडरेशन ऑफ कर्नाटका मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने प्री प्राइमरी स्कूल के क़याम के पस मंज़र पर रोशनी डाली और कहा कि उन्होंने किस जज्बे और किस मेहनत से प्री प्राइमरी स्कूल का डोल डाला है। जलसे की गर्ज़ गायत पर रोशनी डालते हुए आफाक आलम सिद्दीकी ने कहा कि रस्मन नहीं अमलन हाफिज कर्नाटकी अपने आप में एक अंजुमन और तहरीक है। उन्हें जब मालूम हुआ कि फेडरेशन ऑफ कर्नाटका मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ के लिए दिलो जान से काम कर रही है और इस फेडरेशन के जिम्मेदारान रात दिन उर्दू ज़बान के फ़रोग़ और स्कूलों की शादाबी के कामों में लगे हैं, तो अपनी बाहें फैला दी और उन्हें अपने गले से लगा लिया। इस मौके से और भी कई माहिरीन, असातिज़ा और दीगर अहले इल्म ने खिताब किया। आखिर में गुलशन जुबैदा के बच्चों ने अपने अदबी व सकाफती प्रोग्राम से सामीन व नाजरीन को हैरान कर दिया। वो जिस अंदाज से बेदबाजी का मुजाहरा कर रहे थे और प्राइमरी व हाई स्कूल के बच्चे और बच्चियां जिस खुद एतमादी से मुशायरे पढ़ रही थी, उसे देखकर साफ महसूस होता था कि उन पर बहुत ही मेहनत की गई है। अब खबर बेंगलुरु से। गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिंदुस्तानी तहजीब के खिलाफ है। इससे ख़ानदानी निज़ाम तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा और हिंदुस्तानी समाज खतरनाक मोड़ पर चला जाएगा। इन ख्यालात का इजहार जमात इस्लामी हिंद के अमीर मौलाना जलालुद्दीन उमरी ने कल यहाँ उर्दू मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने बताया कि आजकल मुल्क की अदालतों से जो फैसले आ रहे हैं, इससे मुल्क के कानून की बालादस्ती ख़त्म हो रही है और आज़ादी के बाद पहली मरतबा लोग अदालती फैसलों पर अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। मौलाना उमरी ने बताया कि इससे कबल अदालत ने हमजिन्स परस्ती को भी जुर्म के ज़ुमरे से बाहर कर दिया। ये फैसला भी हिंदुस्तानी तहजीब के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि जमात इस्लामी हिंद ने इस फैसले पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के पेशवाओं के साथ मीटिंग की थी और सभी पेशवाओं ने इसको गैर फितरी और गैर इंसानी अमल करार दिया था। मौलाना जलालुद्दीन उमरी ने मस्जिद के मामले पर अदालत के तासुरात पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए बताया कि मस्जिद का जिक्र कुरान में भी है। मस्जिद की ज़रूरत न होती तो आज हिंदुस्तान में हज़ारों मसाजिद क्यों तामीर होती। ये सब इलेक्शन के सामने शूशे छोड़े जा रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता जा रहा है, इस सिलसिले में लोग अलग अलग तरह के अपने बयानात दे रहे हैं और इलेक्शन के लिए अपने अपने सोच और अपनी फिक्र के साथ तैयारियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिंदुस्तानी तहजीब के खिलाफ है। इससे ख़ानदानी निज़ाम तबाह बर्बाद हो जाएगा।
मुसलमान इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत है, मगर आज मीडिया हमें नज़रअंदाज कर रहा है। ऐसा बावर कराया जा रहा है कि मुसलमानों की कोई अहमियत ही नहीं है। उनका मानना था कि उर्दू मीडिया ही ले देकर हमारे मसाइल पर आवाज़ उठा रहा है, जबकि दीगर ज़बानों के अखबारात को भी इस सिलसिले में आवाज़ उठानी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि शादी एक ऐसा रिश्ता है जिससे ख़ानदान बनते हैं और हमें अपने बाप दादा का नाम मिलता है। नाजायज़ ताल्लुकात को जुर्म करार न देना इस रिश्ते को ही ख़त्म कर देने का ज़रिया बन जाएगा। अगर अब इसके खिलाफ तमाम तबकात मुत्तहिद होकर आवाज़ न उठाएंगे तो मुल्क में एक नया तूफ़ान बर्पा हो सकता है। सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए जिस तरह कानून बना है, इसी तरह रिश्तों के दरमियान भी कवानीन हैं और इन कवानीन पर अमल हर इंसान की जिम्मेदारी भी बनती है, वरना समाज खोखला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद बनाना इस्लाम में गैर ज़रूरी होता तो फिर ये मसाजिद किस लिए बनाई गई है। हाँ, अलबत्ता ये हुक्म है कि जब नमाज का वक्त हो तो आप जहाँ मौका मिले नमाज पढ़ सकते हैं। अगर मस्जिद बनाना ज़रूरी ना होता तो बाबरी मस्जिद भी तामीर नहीं की गई होती। हिंदुस्तान या किसी भी मुल्क में मुसलमानों में कोई बस्ती ऐसी नहीं है जहाँ पर मस्जिद ना हो। मलहूज़ रहे कि इस मौके पर जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद थे और इनके अलावा दीगर ज़िम्मेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। अब खबर नई दिल्ली से, ये एम के वेणु की रिपोर्ट है जो दी वायर में शाये की गई है। आपके इत्तलाआत के लिए और तफसीलात के लिए पेश की जा रही है। गुज़िश्ता हफ्ते फ्रांस के साबिक सदर के जरिए किए गए इंकिशाफ की आंच से नरेंद्र मोदी को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि राफेल तनाज़ा अब वज़ीर आज़म के साथ अनिल अंबानी के रिश्ते पर मरकूज हो गया है। ऐसा ताल्लुक जिसकी वजह से हिज़्ब मुखालिफ का इल्ज़ाम है कि पब्लिक सेक्टर की कहीं ज़्यादा तजुर्बाकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की कीमत पर अंबानी की कंपनी को डासो के साथ साझेदारी का मौका मिल सका। तो अब ये मुद्दा हिंदुस्तान में बनने वाली एयरक्राफ्ट की इजाफी कीमतों के बारे में हो रही बहस का नहीं रहा है। अब मुद्दा लगातार हो रहे क्रोनिज्म का है, जिसका सामना मोदी को राहुल गांधी की सूट बूट की सरकार वाले तंज के बाद करना पड़ रहा है। अगर याद हो तो उस वक्त भी वजीर आजम ने बहुत मुदाफाती बयान दिया था कि मेरी पॉलिसियां लोगों की भलाई के लिए हैं, अंबानी के लिए नहीं। लेकिन सवाल यह है कि वजीर आजम एक जाहिरी बात को दोहराने को मजबूर क्यों है। कुछ तो इसलिए कि मोदी के लगातार खुद को पाक साफ और फकीर होने के दावे के बावजूद उनको इस नजरिए का लगातार सामना करना पड़ा कि उनके बड़ी तिजारती घरानों से कुर्बत हैं, जिनके मेंबरों की वफादारी की मदद से वो खुद को इख्तिदार में बनाए हुए हैं। बेशक ये सियासी बदउनवानी की एक शक्ल है जो हिंदुस्तान में सियासी फंडिंग के लिए कोई शफाफ सिस्टम ना होने की सबब पनपती है। ऐसे में जानना दिलचस्प होगा कि बीजेपी को बिजनेस घरानों या गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अजय पेरामल, रोहिया फैमिली जैसे के जरिए चलाए जा रहे निजी इदारों के जरिए खरीदे गए कितने बेनाम इंतखाबी बॉन्ड मिल रहे हैं। इसी तनाजुर में मोदी के सामने एक और चैलेंज है, जहां उन पर इल्जाम है कि उनका बड़े कारोबारियों से करीबी रिश्ता है। सीनियर बीजेपी रहनुमा मुरली मनोहर जोशी की सदारत वाले एक पार्लिमानी कमेटी के जरिए अब वजीर आजम दफ्तर से रघुराम राजन की फहरिस्त पर जवाब मांगा है। 2015 में आरबीआई के साबिक गवर्नर रघुराम राजन के जरिए भेजी गई इस फहरिस्त में उन कारोबारियों के नाम थे जिन्होंने बैंकों से कर्जा लिया, धोखाधड़ी करके इस पैसे को किसी दीगर मकसद में लगाया और कर्ज नहीं चुकाया। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने एक बार फिर मुतनाज़ा बयान दे दिया है। रियासत के राजगढ़ की कस्तूरबा गर्ल्स हॉस्टल में तालिबा से मिलने पहुंची गवर्नर ने वहां की लड़कियों को खाना बनाने सीखने और बाल न कटवाने की सलाह दी है। गुजरात के साबिक वज़ीर आला आनंदीबेन ने हॉस्टल की स्टूडेंट से कहा कि अगर लड़कियों ने दाल बनाना नहीं सीखा तो जब उनकी शादी होगी तो सास से लड़ाई की सबसे पहली वजह यही होगी। दी वीक के मुताबिक तालिबा से बातचीत के दौरान गवर्नर ने बाल ना काटने की हिदायत देते हुए कहा कि यह औरतों की शान है। उसके साथ ही उन्होंने वहां मौजूद लड़कियों को सब्जी काटने और आटा गूंदने की भी सलाह दे डाली। मजीद कहा कि यहां मौजूद लड़कियों को मिलकर खाना बनाना चाहिए ताकि वो सीख सकें। इस दौरान गवर्नर ने लड़कियों से वजीर आजम, वजीर आला, सदर जमहूरिया और गवर्नर के नाम भी पूछे। जिन लड़कियों के जवाब गलत हुए उनके लिए वहां के वार्डियन से स्पेशल क्लास लगाने को भी कहा गया। खबर नई दिल्ली से। पाकिस्तान की सरहद में घुसकर उन्हें सबक सिखाने के लिए की गई सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर एक और बड़ी खबर दी गई है। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने सरहद पार पाकिस्तानी टारगेट्स पर एक और बड़े हमले के इशारे दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक तकरीब के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा, बीएसएफ के एक नौजवान के साथ पाकिस्तान ने जिस तरह की बदसलूकी की उसे शायद आपने देखा होगा। उसके पेश नजर सरहद पर कुछ हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं बताऊंगा नहीं, हुआ है, ठीक ठाक हुआ है, यकीन रखना बहुत बेहतर हुआ है। 2-3 दिन पहले और आगे भी देखिएगा क्या होगा।
वजीर दाखिला ने कहा, मैंने अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को कहा था पड़ोसी है, पहले गोली मत चलाना, लेकिन एक भी गोली अगर इधर से चल जाती है तो फिर अपनी गोलियों को मत शुमार करना। अब खबर बरेली से। उत्तर प्रदेश के बरेली में बेवा भाभी को एक देवर ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। देवर अपनी भाभी पर बुरी नीयत रखता था और गुज़िश्ता शब उसने अपनी भाभी के साथ असमंजरी की कोशिश की। भाभी की मुखालिफत करने पर उसने लाइसेंसी बंदूक से उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस मुलजिम कातिल की तलाश में मसरूफ है। इतला मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वाकया कैंट थाना इलाके के क्यारा गांव का है, जहां रेतू सिंह के शौहर जयपाल सिंह की तकरीबन 3 साल कबल मौत हो चुकी है। वो अपने बेटे आकाश, बेटी राधा और बेटे अनु के साथ रहती थी। इल्जाम है कि भाई की मौत के बाद से भाभी पर देवर सर्वेश सिंह बुरी नजर रखता था। कुछ दिन पहले ही दोनों में इस बात पर तनाजा भी हो गया था। एक और खबर नई दिल्ली से। सरहदी सिक्योरिटी फोर्सेस यानी बीएसएफ ने जुम्मा को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त जवाबी कार्रवाई करने का अज़्म किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इमरान खान के वजीर आजम बनने के बाद जम्मू कश्मीर में बैनुल अक़वामी सरहद पर मुखालिफिन के रुख में ज्यादा जारहियत नजर आ रही है। बीएसएफ के जनरल डायरेक्टर के शर्मा ने नामनिगारों से कहा कि उनके फौजी बैनुल अक़वामी सरहद पर हाल में अपनी जिंदगी में मारे जाने का बदला लेने के लिए दुश्मन के खिलाफ मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं। 30 सितंबर को रिटायर्ड होने जा रहे शर्मा ने यह भी इतराफ किया है कि हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की कार्रवाई में मारे गए। डायरेक्टर जनरल ने कहा कि जो उनके सीने में 3 गोलियां, जवान की सीने में 3 गोलियां मारी गई, उन्हें बाढ़ के दूसरे तरफ खींचकर ले जाया गया, उनके पैर बांध दिए गए और गला रेत कर कत्ल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लाश को बर्बाद नहीं किया गया। बीएसएफ सरबराह ने कहा कि जम्मू के रामगढ़ सेक्टर में 7 दीगर एहलकारों के साथ बाढ़ के पास गए जवान की बंदूक और गोला बारूद को हमलावर साथ ले गए हैं। अब खबर न्यूयॉर्क से। फिलिस्तीन की सिविल सोसाइटी की नुमाइंदा 60 तंजीमों ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को एक मकतूब इरसाल किया है, जिसमें उनसे कहा गया है कि महमूद अब्बास फिलिस्तीनी कौम की नुमाइंदगी नहीं करते। मकतूब में यह भी कहा गया है कि महमूद अब्बास अपनी आईनी मुद्दत सदाकत खत्म कर चुके और अब वो कौम की नुमाइंदगी नहीं करते। मरकज़ी इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक बयान में कहा गया कि सन 2003 के फिलिस्तीनी असासी दस्तूर के मुताबिक महमूद अब्बास सन 2005 से 2009 तक फिलिस्तीन के आईनी सदर हैं। उसके बाद वो इस अहदे पर गैर कानूनी और खिलाफ आईन काबिज हैं। अब खबर तुर्की से। जर्मन चांसलर एंगेला मेर्केल और सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी लाने का अहद किया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान जर्मनी और तुर्की के माबैन ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हुई है, जिसकी वजह से शहरी हुकूक और दीगर उमूर पर इख्तिलाफात बताए जाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ तुर्क सदर ने बर्लिन में जर्मन चांसलर से मुलाकात में कहा कि इख्तिलाफात के बावजूद दोनों ममालिक को अपने ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहिए। सदर एर्दोगान ने आज बोन में एक नई मस्जिद का इफ्तिताह कर रहे हैं। इस मौके पर हिफाजती इक़दामात सख्त कर दिए गए हैं। अब खबर नाबलस से। फिलिस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के शिमाली शहर नाबलस में जलील क़द्र पैगम्बर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मज़ार पर यहूदी आबादकारों की बड़ी तादाद ने धावा बोल दिया है और तलमूदी मजहबी तालीमात के मुताबिक वहां पर मजहबी रसूमात अदा की गई हैं। इस मौके पर फिलिस्तीनी शहरियों और यहूदी अशरार के दरमियान झड़पें भी हुई। काबिज फौज ने फिलिस्तीनी शहरियों पर आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज किया, जबकि यहूदियों को मुक़द्दस मकामात पर धावे के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की गई। आईनी शाहिदीन ने मरकजी इत्तलात फिलिस्तीन को बताया कि 1450 यहूदी आबादकारों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मज़ार पर धावा बोला। उनके मज़ार पर आमद से कबल इसराइली फौज और पुलिस की भारी नफरी ने मज़ार को घेरे में ले लिया था। काबिज फौज की बड़ी तादाद ने करीबी हवारा चौकी, मस्जिद उम्महातुल मुमिनीन और दीगर मकामात पर तैनात की गई थी। हजरत यूसुफ के मज़ार पर धावे से कबल यहूदी मजहबी इंतहा पसंद ग्रुपों ने आबादकारों को हजरत यूसुफ के मज़ार पर धावे बोलने की दावत दी गई, जिसके बाद यहूदियों की बड़ी तादाद वहां जमा हो गई थी। अब खबर जापान से। उड़ने वाली खुदकार कारों की तैयारी अब तक सिर्फ एक तखय्युल रहा है, मगर टेक्नोलॉजी की बरक़रफ्तार तरक्की ने इस ख्याल को हकीकत के रूप में तब्दील करने के करीब पहुंचा दिया है। जापान उन ममालिक में सर फहरिस्त है जो अनकरीब उड़ने वाली ड्रोन कारें मुतारिफ कराने जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जापानी हुकूमत रवां साल उड़ने वाली कारों की रूट के नक्शे जारी करने की तैयारी में है। यह ट्रांसपोर्ट के मैदान में एक इनकलाबी पेशरफ्त है, जिसके नतीजे में सड़कों पर ट्रैफिक का बोझ कम करने में मदद मिलने के साथ शहरियों को गाड़ियों के लिए इंतजार की जहमत से भी बचाया जा सकेगा।
उड़ने वाली कारों की सहूलत हासिल करने के बाद कोई भी शख्स अपने घर या दफ्तर की छत से कार की मदद से अपनी मंजिल मकसूद पर रवाना हो सकेगा। जापान में उड़ने वाली कारों की तैयारी किसी एक कंपनी का नहीं बल्कि कई कंपनियों की मुश्तरका मसाई का नतीजा है। ड्रोन कार प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनियों में जापान की सबसे बड़ी फिजाई कंपनी ऑल निप्पॉन एयरवेज, इलेक्ट्रॉनिकल कंपनी NEC और 12 दूसरी कंपनियों के साथ नक्शा तैयार करने वाले माहिरीन भी काम कर रहे हैं, जो रवां साल उड़ने वाली कारों के नक्शे जारी करेंगे। अब खबर पेरिस से। फ्रांस में जिनसी तशद्दुद की रोकथाम के लिए मंजूर करदा कानून का बाकायदा निफाज शुरू कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज फ्रांस की एक अदालत ने एक मुसाफिर बस में खातून को जिनसी तौर पर हरासा करने वाले एक शख्स को 300 यूरो जुर्माना और 3 माह कैद की सजा सुनाई गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस नए कानून के तहत खवातीन पर पब्लिक मकामात पर हाथ उठाने, उन्हें किसी भी तरीके से हरासा करने, जबानी या लफ्जी छेड़छाड़ पर फौरी जुर्माना आयद किया जाएगा। फ्रांसीसी खातूनदान सामिया मकतूफ ने एक रिपोर्ट में कहा कि जिनसी हरासानी की रोकथाम का कानून इंतहाई अहमियत का हामिल है। देर आयत दुरुस्त आयत की मिस्दाक इस कानून को बहुत पहले नाफिज कर दिया जाना चाहिए था। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी वजीर खारिजा आदिल अल जुबैर का कहना है कि ममलिकत सऊदी अरब की सियादत और खुद मुख्तारी एक सुर्ख लकीर है और हम अपने उमूर में मुदाखलत हरगिज कबूल नहीं करेंगे। जुमा के रोज न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब के दौरान अल जुबैर ने कहा कि कतर का बाइकाट सऊदी अरब उसके हलीफों की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों का हिस्सा है। उन्होंने ईरान का मुकाबला करने के सिलसिले में अमरीकी हिकमत अमली के लिए सऊदी अरब की सपोर्ट को बावर कराया। सऊद वजीर खारिजा के मुताबिक तेहरान की दहशतगर्द सरगर्मियां अभी तक खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम एक बार फिर इंसदाद दहशतगर्दी के सिलसिले में बैनुल अक़वामी ताआवुन को बढ़ाने पर जोर देते हैं। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब में जहां चटेल मैदान और बेआबोगिया वादियां पाई जाती हैं, वहीं ऐसे सरसब्ज़ व शादाब कुदरती हुस्न से मालामाल आबशारों और साल भर जारी रहने वाले चश्मों और कुदरती वसाइल से भरपूर शहर भी मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के एक ऐसी तारीखी सियाहती कुदरती वसाइल और फितरी हुस्न से मालामाल एक इलाके का तफसीली तारुफ पेश किया गया है। मकामी सतह पर उसे मदीनतुल ज़ब्बाब यानी धुंध का शहर का नाम दिया जाता है। ये शहर आसिर के इलाके से मुत्तसिल तनुमा गोरनरी में वाक़ है। इस शहर में साल भर पानी की आबशारी और चश्मे जारी रहते हैं। जनूबी मगरबी सऊदी अरब में तनुमा का इलाका न सिर्फ कुदरती हुस्न बल्कि एक तारीखी मकामात की वजह से भी शोहरत रखता है। मुस्तकबिल में सियाहत और इक़्तिसादियात का एक नया मरकज बन सकता है। जोग्राफियाई महल के एतबार से ज़ब्बाब शहर के अतराफ में जिब्बाल सरवात का पहाड़ी सिलसिला एक फसील की शक्ल में मौजूद है। ताइफ और अबहा को मिलाने वाली शाहरा पर वाक़ शहर अबहा के शिमाल में 125 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। अब खबर गज्जा पट्टी से। गज्जा की पट्टी की सरहद के नज़दीक एहतिजाज करने वाले फिलिस्तीनियों पर इसराइली फौजियों की फायरिंग में 2 बच्चे समेत 6 फिलिस्तीनी शहरी शहीद हो गए हैं और इस दौरान झड़प में 210 अफराद जख्मी हो गए हैं। अखबार डॉन ने हफ्ते के रोज वजारत के तर्जुमान अशरफ अल कुदरा के हवाले से इतला दी है। उन्होंने कहा कि गज्जा के जुनूबी इलाके में खान यूनिस में सरहद के नज़दीक फायरिंग में 12 साला नासिर मुसबह दम तोड़ गया, जबकि वस्ती गज्जा के इलाके अलबरीज में इसराइली फौज की जानिब से मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग के नतीजे में 14 साला मोहम्मद अल हौम हलाक हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक सरहदी इलाकों में मुजाहिरे के दौरान इसराइली फौजी फायरिंग में 4 दीगर अफराद भी हलाक हुए हैं। इसके अलावा झड़पों के दौरान 210 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल किया गया है। अब खबर इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया में आने वाले ताकतवर जलजले और सुनामी की वजह से हलाकतों की तादाद 384 तक पहुंच गई है, जबकि हुक्काम ने इसमें इजाफे का खदशा जाहिर किया है। अस्पतालों में सैकड़ों जख्मियों को लाया गया है, जबकि डॉक्टरों की कमी है। हुक्काम ने बताया कि गुज़िश्ता रोज आने वाले जलजले और सुनामी ने इंडोनेशिया के 2 मरकजी शहरों में तबाही मचा दी। ताज़ा इतलात के मुताबिक इन 2 शहरों में कम से कम 384 अफराद हलाक, जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए। 7.7 शिद्दत के जलजले के बाद सुनामी की लहरें 5 फीट तक उठी, जिसकी वजह से 3.5 लाख आबादी वाले शहर पालो में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। तिब्बी ज़राए ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। सूबा सोलावेसी के शहर पालो में अस्पताल जख्मियों से भर चुके हैं, जबकि वहां डॉक्टरों की कमी है। मुतासिरा इलाकों में सड़कों के साथ साथ मवासलात का निज़ाम तबाह होकर रह गया है, जबकि इन इलाकों में लोगों तक रसाई हासिल करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक तर्जुमान के मुताबिक वो इंडोनेशिया हुक्काम के साथ राबिते में हैं और किसी भी हंगामी मदद के लिए तैयार हैं। अब खबर ढाका से। बांग्लादेश में अक़लियतों ने सियासी जमातों से अक़लियतों के इस्तेहसाल में शामिल रहनुमाओं को आने वाले आम इंतखाबात में उम्मीदवार न बनाने की अपील की है।
بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے سہروردی باغ میں بنگلہ دیش ہندو بدھ عیسائی اواقیہ پریشد کی طرف سے منعقدہ ایک ریلی کے دوران یہ اپیل کی گئی۔ ریلی میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہوئے۔ اقلیتی گروپ کے جنرل سیکریٹری رانا داس گپتا نے مطالبہ نامے کے 5 نکات کو پڑھتے ہوئے کہا ورنہ اقلیت ووٹنگ سے دور رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتی آبادی اس سیاسی جماعت یا اتحاد کی اپنی مکمل حمایت کرے گی جو ان کے مفادات اور حقوق کی حفاظت کے لیے واضح طور پر پابند عہد ہوگا۔ اب خبر مقبوضہ بیت المقدس سے اقوام متحدہ کے اجلاس کے موقع پر فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے 10 کروڑ 18 لاکھ ڈالر کی امداد کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ رقم فلسطینی پناہ گزینوں کی ریلیف ایجنسی اونروا کو درپیش 68 ملین ڈالر کی قلت کو پورا کرنے کے لیے دینے کا اعلان کیا گیا۔ اونروا کے ترجمان سامی مشعشع نے ایک بیان میں کہا کہ گزشتہ روز اقوام متحدہ کی اپیل پر امداد دینے والے ملکوں کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں اردن، ترکی، جاپان، سویڈن اور یورپی گروپ نے شرکت کی۔ یہ اجلاس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر منعقد ہوا۔ اجلاس میں شریک ملکوں نے فلسطینی پناہ گزینوں کی ریلیف کے ذمہ دار ادارے اونروا کو 118 ملین ڈالر کی امداد دینے کے وعدے کیے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت دیں۔ اجازت سے پہلے وہی اپیل کہ آپ ہمارے دیگر ڈیلی ویڈیو نیوز اور ویکلی سیدھی بات کو بھی دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ہمیں یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم وما